hugely different support, I believe. He traveling to different capital and Prime Minister traveling. Yes, there will be differences. His Holiness is His Holiness. Even if I get 10% of what he gets as far as audience is concerned, that will be welcome. Yes, I think His Holiness is a global statesman. He is widely respected and very popular around the world. So he has a huge following, justifiably so. He advocates compassion, peace, interreligious friendship, and humanity as a whole. And he's a great spiritual teacher. So he has vast following, and we are so happy and lucky to have a leader like him. And my role, as I said, is the secondary voice, is the political voice. So I'll do the best I can to live up to His Holiness' vision and expectation that we have an independent political movement which can sustain on our own. So that's the long-term vision of His Holiness, and I intend to fulfill that. Prime Minister Sangay, thank you so much for being part of Candid with Rahul. You are watching Prime Minister Lobsang Sangay in Candid with Rahul. Thank you for watching Frontier Television. ওলায়া সজাগ জনতা ওলায়া পোহৰানুতা ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোতে যায় যদি যায় জীৱনটো যাক সমুখৰে সেনাপতি থমকি জিৰালে কিনো হ'ব সেনানীয়ে ভাবিলে গুণিলে কোলা কাকতি ফৰিং নাকলৈ শুন ভুক শিশুৰে আৰ্তনা এই তিল মৃত্যুৰ মানে সংবাদ এই সংবাদ শুনিও বধিৰ কিয় তই নকৰিবি কিয় তোৰ প্ৰতিবাদ সংগ্ৰাম আনীতি নাম জীয়নৰে ইতিহাসে চিৰৰে জয় জনতাৰে এৰি দানৱকে বধো গৈ ওলায়া সজাগ জনতা ওলায়া পোহৰানুতা ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধোতে যায় যদি যায় জীৱনটো জনসাধাৰণৰ আছে বহু সমস্যা খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰদূষণলৈ ডাইনীৰ সন্দেহত হত্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহঙা ৰন্ধন গেছলৈ আপোনাৰ সৰুবৰ প্ৰতিটো সমস্যা আমি উত্থাপন কৰিম ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ মজিয়াত আপুনিও কৰিব মতামত ব্যক্ত নিসংকোচে নিৰ্ভয়ে চাবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পাব্লিক কানেক্ট সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ প্ৰতি সন্ধিয়া 6 বজাত মঞ্চতে হিন্দু ইছলাম খ্ৰীষ্টিয়ান বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণৱ সকলো ধৰ্মৰ প্ৰকৃত ধৰ্মালোচনা আৰু বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গুৰুৰ সৈতে পোনপটীয়া বাৰ্তালাপ ধৰ্মচিন্তা এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান একমাত্ৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি আমাৰ দৃষ্টি ৰজাৰ পৰা প্ৰজালৈ আমাৰ দৃষ্টি গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে আমাৰ দৃষ্টি ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ৰাজ্যলৈ
আমাৰ দৃষ্টি প্ৰতিটো সংবাদতে। नमस्कार, विजयादशमी की अनेक शुभकामनाओं के साथ फ्रंटियर टीवी के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरसेल। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज देश भर में नवरात्र के समापन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमाएं हो रही विसर्जित। दशहरा पर बुराई के प्रतीक रावण का हुआ हर जगह दहन। मां दुर्गा की वंदनाओं से गूंजी गुवाहाटी की सड़कें, माचखुआ व पांडु के घाटों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। गुवाहाटी के गणेशगुड़ी में पति की हैवानियत देख लोग दंग, दाव से पत्नी का गला काटा। गुवाहाटी की तरह ही धिंग व सोनारी में भी नृशंस हत्याकांड। नक्सलियों से मुकाबले के लिए थानों को केंद्र सरकार से 120 करोड़ का अनुदान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र को चेताया, पाक और चीन की निकटता भारत के लिए खतरा। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की 563वीं जयंती पर राज्य भर के नामघरों में नाम कीर्तनों का आयोजन। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की अनूठी परंपरा, कोयंबटूर में अपना रक्त दे करते हैं देवी को अर्पित। कन्या शिशुओं की लगातार बढ़ रही हत्याओं से मध्य प्रदेश सरकार चिंतित, 100 करोड़ की बेटी बचाओ महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा। और त्रिपुरा के नवगठित उग्रवादी संगठन का विस्फोटक खुलासा, कछार जिले में चल रहा है प्रशिक्षण शिविर। अब खबरें विस्तार से। 9 दिनों के साथ के बाद आखिरकार दशमी को मां की विदाई हो रही है। जी हां, आज दशमी है, मां दुर्गा की विदाई का दिन। अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी और दशहरे का त्योहार आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर पूजा पंडालों में लगी मां की दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। साथ ही दुर्गा पूजा के दशमी के मौके पर आज पूजा पंडालों में मां के माथे पर सिंदूर लगाने के बाद महिलाओं ने सिंदूर खेल किया। आज के दिन बुराई के प्रतीक रावण का पुतला भी फूंका जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के उद्देश्य से रावण का अंत किया था। इसके बाद वे अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। विजयादशमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय दिवस को मनाकर लोग बाग इसे जाहिर करते हैं। राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में गुरुवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रगा अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। श्री रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में सिंह और सोनिया शाम करीब 6:30 बजे पहुंची, जिसके बाद 15 मिनट तक आतिशबाजी हुई। इसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। रामलीला मैदान में शाम 4 बजे से ही लोग वर्षों से हो रहे इस कार्यक्रम को देखने के लिए जुटने लगे थे। इससे पहले यहां 9 दिन तक रामलीला का मंचन भी किया गया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दुर्गोत्सव के दौरान वैसे तो पूरे भारतवर्ष में पूजा मां दुर्गा की होती है, लेकिन पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं और इससे जुड़ी परंपराएं भी जुदा हैं। ऐसी एक अद्भुत परंपरा तमिलनाडु के कोयंबटूर में है, जिसके तहत विजयादशमी के मौके पर भक्त देवी को खुश करने के लिए चाकुओं से अपने ही शरीर के अंगों को काटते हैं। भक्तों द्वारा इस परंपरा को गुरुवार को भी विजयादशमी के मौके पर निभाते देखा गया। पेश रिपोर्ट। कहते हैं कि भारत परंपराओं का देश है और यह सच भी है। देश भर में दुर्गोत्सव की धूम है। हर जगह पूजा तो मां दुर्गा की ही की जाती है, लेकिन अलग अलग तरीके से और जुदा परंपराओं के अनुसार। आमतौर पर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भैंसों व अन्य पशु पक्षियों की बलि दी जाती है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कोयंबटूर के लोगों का तरीका कुछ और ही है। पिछले 200-300 सालों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार यहाँ के लोग विजयादशमी के रोज मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपना ही खून चढ़ाते हैं। जी हाँ, भक्त इसके लिए अपने ही शरीर के विभिन्न अंगों को चाकुओं से काटते हैं और उससे निकलने वाले खून को देवी को चढ़ाते हैं। इन भक्तों का मानना है कि ऐसा करने से देवी का आशीर्वाद उनके परिवार व अपनों के साथ हमेशा बना रहता है।
इन भक्तों के चेहरों पर 200 साल पुरानी इस परंपरा को निभाते हुए कोई दुख नहीं रहता, वरन एक अलग सी चमक ही रहती है। इसके अलावा ये भक्त अपनी चोटों पर किसी औषधि का प्रयोग भी नहीं करते। देवी के चरणों पर चढ़ाया जाने वाला हथली का पाउडर ही इनके लिए औषधि का काम करता है। 200 வருஷம் நோம்பி இது சீரும் சிறப்போட நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லா காரியங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கு. இந்த அம்மனோட மகிமை எல்லா உலகத்துக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காகவே இந்த கத்திப்போ கோயம்புத்தூர் சீரும் சிறப்போட இருந்துட்டு இருக்கு. उधर एक अन्य भक्त परम शिवम का कहना है कि वह इस 200 साल पुरानी परंपरा का लंबे समय से अनुसरण करता आ रहा है। उसका कहना है कि इस प्रक्रिया में उसे सिर्फ अपने शरीर को काटना याद रहता है, घावों की तो उन्हें परवाह ही नहीं रहती। इसके लिए न तो वे किसी दवा का सेवन करते हैं और न ही किसी डॉक्टर आदि के पास ही जाते हैं। ड्रमों की थापों पर नाचते हुए ये भक्त मुख्य रूप से अपने हाथों व कंधों को ही काटते हैं। சௌடேஸ்வரம்மன் கோயிலோட விசேஷம் கடந்த ஒரு 200-300 வருஷமா இந்த விழா வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. கோயம்புத்தூர்ல இல்ல, தமிழ்நாடு முழுவதுமே நடக்குது. எங்க சாமி இந்த விஜயதசமி அன்னைக்கு மட்டும்தான் நாங்க இந்த கத்தி போட்டு எங்களோட ரத்தத்தை வந்து காணிக்கையாக்கி சாமியை வந்து வரவேற்போம். இது வருஷம் தவறாம நடக்குது. நான் ஒரு 5 வயசுல இருந்து இந்த கத்தி போடுறேன். उधर एक अन्य भक्त नागराज का कहना है कि इस महोत्सव को वे सौदेश्वरी अम्मान महोत्सव के नाम से जानते हैं और यह पिछले 300 सालों से विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। इस भक्त का कहना है कि हम अपना रक्त देवी को चढ़ाकर मंदिरों में उनका स्वागत करते हैं। भक्त इस मौके पर खुद को पूरी तरह से देवी के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। हर उम्र के भक्त पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। गुरुवार को इस मौके पर कोयम्बटूर में निकाली गई सांस्कृतिक शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। न्यूज डेस्क, फ्रंटियर टीवी। महाअष्टमी के दिन कुछ शराबी युवकों के बीच हुए गुटे संघर्ष के कारण गोलाघाट में दुर्गोत्सव का माहौल पहले ही खराब हो चुका था, लेकिन इसकी रही सही कसर गुरुवार को 4 भैंसों ने पूरी कर दी जब वे खुलेआम बेकाबू होकर भीड़ के बीच सड़कों पर दौड़ने लगे। इसको लेकर लोगों में आतंक कायम हो गया। गोलाघाट में गुरुवार को भी विजयादशमी को लेकर भक्तों का उत्साह उस समय ठंडा पड़ गया जब 4 भैंसों ने भक्तों की भीड़ में अफरा तफरी मचा दी। मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए दिन के ढलने के साथ साथ भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। तभी अचानक लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आने लगे। बाद में पता चला कि भीड़ में 4 भैंसे घुस आए और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। इस घटना से पूरे इलाके में आतंक का माहौल कायम हो गया। ঘপককে আহিলে অহাৰ পিছত মানুহ এজন আহিলে ঘপকে বগা চাট পিনা তেওঁ ঘপককে ধৰিলে, ধৰাৰ পিছত হিংটো ধৰি দিলে। হিংটো ধৰাৰ কাৰণে বহুতো খং হৈ গ'ল। তেওঁক অকণ ইফালৰ পৰা খেদি মেলি আহিলে, খেদি মেলি আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত হেৰি কৰিলে। তাৰপিছত মানুহটো ঘপককে ছাইড হৈ দিয়াৰ পিছত মানুহজনী খেদি দিলে। মানুহজনী খেদি চিঞৰ লাগি গ'ল। बांध कर रखे गए ये चारों भैंसे किसी तरीके से छूट गए और भीड़ को देखकर बेकाबू हो गए। वे भीड़ को देखकर चिल्लाने लगे और भीड़ की ओर ही अंधाधुंध दौड़ने लगे। भैंसों को अपनी ओर दौड़कर आते देख लोग आतंकित हो गए और खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक মানুহৰ মাজত ইমান ডাঙৰ গৰুজনী আছে, আমাৰ দিগদাৰ হয়, ভয় লাগে। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গৰু এবাৰ খেলি ফুৰিছে গৰুবোৰ আমাৰ আচলতে ঘাयल হোৱা নাই চাগে, এতিয়ালৈকে দেখা নাই, কিন্তু হ'বও পাৰে। এনে মাজত কিমানক খেলি ফুৰিছে। इस घटना को देखते हुए अब सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रशासन की ओर से पूरे गोलाघाट में दुर्गोत्सव के दौरान सुरक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने का दावा किया जा रहा था और सुरक्षा के लिए बैरिकेड भी लगाए गए थे, तो ये चारों भैंसे भीड़ के अंदर कैसे प्रवेश कर पाए। कैमरा पर्सन दीपन राजवंशी के साथ जयदीप गुप्ता, फ्रंटियर टीवी, गोलाघाट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए फ्रंटियर टीवी। সর্বশ্রেষ্ঠ সিমেন্ট মানে টপসেম সিমেন্ট। মেঘালয়ৰ প্ৰসিদ্ধ লাইমষ্টোনেৰে নিৰ্মিত অধিক শক্তিশালী टॉपसेम सीमेंट, मजबूती का भरोसा हमेशा। ওচৰৰ এটিএমলৈ পাওক যিকোনো পকেট ফাইণ্ডাৰৰ সৈতে এয়াৰচেল 3G। এয়াৰচেল
স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য গ্ৰহণ, অত্যধিক মছলাযুক্ত খাদ্য, সঘনাই বাহিৰত কৰা খাদ্য গ্ৰহণে